morning to everyone present here. Welcome to the prestigious event of Roshan Mustaqbil Ek Behtar Kal Ki Umeed, organized by Save Youth Save Future Foundation. My name is Arqam. And my name is Mehak. We are truly honored to be your host for this enlightening occasion where we gather to inspire and empower the youth for a brighter future. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निगाहे फिक्र अमल सब लोग है तेरे दीवाने, ऐ दानिशगाहे फिक्र अमल सब लोग है तेरे दीवाने। तू इल्म अदब की शम्मा है और हम है तेरे परवाने, ऐ दानिशगाहे फिक्र अमल सब लोग है तेरे दीवाने, ऐ दानिशगाहे फिक्र अमल सब लोग है तेरे दीवाने, ऐ दानिशगाहे फिक्र अमल सब लोग है तेरे दीवाने। Let us first welcome our esteemed speaker who will share their insightful perspective with us. Please join us in welcoming Mrs. Anika Nazir, the Women's Wing Head of Save Youth Save Future Foundation, to deliver her speech titled Empowering the Youth, Our Vision, Our Mission. Maulana Tariq Misbahi Saab and my colleagues, Chairman Save Youth Save Future Foundation, Muskan Nargis, Mr. Altaf Khan sir, and all other teachers from school administration. Thank you so much for joining us in this event. And most importantly, I would like to welcome you all, the shining faces of one of the best schools of Baramulla Public School. I thought I have to discuss something regarding the one topic which I was given, and what we discussed before commencing this event. We had a conversation with our team that we will discuss some specific topics, but the moment we stepped into this school, आप सबके चेहरे देखकर I re-entered in my golden era of school days, and it seems like I know all of you, and आप सबके जो चेहरे हैं मुझे सिमिलर लगे, क्योंकि मैं उसी एरा में वापस चली गई जब मैं स्कूल डेज में होती थी. Like these girls, they are standing there. हम लोग लिटरली लड़े हैं इस ऐसे खड़े रहने के लिए. There was a house called Sir Said, and I was the head of that house at that time. वो भी बहुत सारे इलेक्शन के बाद आपको मौका मिलता था. So all these golden memories, I would like to tell you, इस सब को अपने साथ समेट के रखिएगा. Some memories are fond and some are difficult in school days, but at the end of the day, when you reach to the next level of your life, you remember all this, and आपके चेहरे पे वो छोटी सी स्माइल आती है और आप सोचते हैं कि कितने प्यारे दिन थे वो जो हमने स्कूल में बेसिकली गुजारे हैं, और यूनिटी के दिन होते हैं. उसके बाद आप दोस्तों से अलग हो जाते हैं, आप टीचर्स से अलग हो जाते हैं, बट जब कभी उस एरा से आपके सामने कुछ चीज़ें सामने आती हैं, आप बिल्कुल उन्हें याद करते हैं. Today we stepped into your school premises with this beautiful theme, Roshan Mustaqbil Ek Behtar Kal Ki Umeed. इससे ये पता चलता है, this theme itself indicates that your elder generation is concerned and worried about you. What future holds for you? We are very concerned about you कि आपका आने वाला फ्यूचर क्या होगा, और as an individual and as an organization हम आपके लिए क्या contribute कर सकते हैं. रोशन मुस्तकबिल को आप अपने जहनों में बसा लीजिए और ये सोचिए कि हमें कश्मीर का एक एक बच्चा, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है, विद ऑल द मॉरल ग्राउंड्स, अपने मॉरल ग्राउंड्स को साथ लेकर हमें आपको नासा में देखना है, हमें आपको इसरो में देखना है, हमें आपको देश के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में देखना है, हमें आपको सुप्रीम कोर्ट में देखना है, हमें आपको दुनिया के हर बड़े प्लेटफॉर्म पे देखना है. आपको पीछे नहीं रहना है. हम उस चीज के लिए कंसर्न है कि हमारे कश्मीर का हर एक बच्चा जिंदगी की सबसे बड़ी ऊंचाई तक पहुंचे, चाहे वो सिविल सर्विसेज हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में. आप जब भी देखते हैं आपके ऑफिसर्स आपके सामने आते हैं, तो आपके जहन में ख्याल आता होगा कि काश हम भी इस पोजीशन पे किसी दिन पहुंचे. नामुमकिन नहीं है,
वो भी आपकी तरह स्टूडेंट रहे हैं और एवरेज स्टूडेंट्स रहे हैं। कभी ये मत सोचिएगा कि शायद जिसने 90% लाए वो उससे ज़्यादा है और मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। मैक्सिमम जब आप सिविल सर्विसेज में देखते हैं तो एवरेज स्टूडेंट्स भी इक्वली कम्पीट करते हैं और शायद कभी कभी वो टॉप 10 पोजीशंस में आते हैं। तो आपके लिए ये एक बेहतर मिसाल है कि आप बच्चे जो है अपने फ्यूचर को जो है सीरियसली लेना शुरू करें आज से ही। बट देयर इज वन मोर एस्पेक्ट टू योर लाइफ फ्रॉम टीन एज टू दैट अर्ली अडल्टहुड, दैट रेस्ट ऑफ योर लाइफ, वो है आप अपने आदतें कैसे मेंटेन रखते हैं या कैसे डेवलप करते हैं। देयर इज दिस टीचर जो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल है और उन्हें काफ़ी सुना जाता है और वो पढ़ाते हैं यूपीएससी के बच्चों को, मिस्टर दिव्य कीर्ति सर। दिव्य कीर्ति सर के एक वीडियो मैंने देखा, उसमें कहते हैं कि बच्चे जो है वो सिर्फ पढ़ाकू नहीं होना चाहिए, ज़िंदगी जीने के लिए एक व्यक्तित्व का होना ज़रूरी है, एक पर्सनैलिटी का होना ज़रूरी है। आप थोड़ी सी बात भी करें, आप थोड़ा सा इंटरेक्ट भी करें, आप थोड़ा सा खेलें भी, आप अलग अलग चीज़ों को जानें भी, आप अपनी जो रिलीजियस नॉलेज है उसको भी पढ़ें, आप बाकी जो लोग आपके सोसाइटी में रहते हैं, अलग अलग तबकों से बिलोंग करते हैं, आप उनको भी जानें, आप उनके साथ निशाना बशाना खड़े हो जाए। वो एक व्यक्तित्व होता है। सिर्फ किताबें ही नहीं या सिर्फ अपनी ज़िंदगी का जो 100% पोर्शन जो है आपका, वो सिर्फ आप किताबों में ही नहीं बल्कि उसको डिवाइड करके हर उस चीज़ में रखिए जो आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करेगा। रोशन मुस्तकबिल का हमारा यही फर्स्ट इंटरैक्टिव सेशन आपके स्कूल के साथ था कि हम आप बच्चों के साथ एक इंटरैक्टिव सेशन करें और आपके सामने वो मिसालें भी लेकर आए जिनसे आपको इंस्पिरेशन मिले और आपको एक मोटिवेशनल बूस्ट मिले, क्योंकि मोटिवेशनल बूस्ट भी ज़रूरी होता है। चाइल्डहुड हम समझते हैं शायद बच्चे हैं, छोटे हैं, तो इनको क्या ही परेशानी होती है, बट देन देयर कम्स अनदर एस्पेक्ट ऑफ चाइल्डहुड ट्रॉमा। तो हम आपके साथ कोई इंटरेक्शन भी करना चाहेंगे आगे आने वाले समय में कि ऐसी कौन सी चीज़ है शायद जो आपको परेशान भी कर रही होगी, हम उनके बारे में बात करना चाहेंगे। देयर शुड बी नो कर्टेन्स ऑन समथिंग जो आप बाहर नहीं लाना चाहते हैं। हर चीज़ एक साफ आईने की तरह होनी चाहिए। आप बच्चों के सामने या आपका इंटरेक्शन आपके टीचर्स के साथ कैसा हो, आपके टीचर्स का क्या इंटरेक्शन है आपके साथ, किस तरीके का वो टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप आप बिल्ड करते हैं अपने स्कूल में, हम वो भी जानना चाहेंगे। हमने ऐसे भी केसेस देखे रिसेंटली, एक बहुत ही ऐसी अनफॉर्चुनेट न्यूज़ हमारे सामने आई एक स्कूल की डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर से, एक टीचर ने अपने बच्चे को इतना इस कदर मारा कि उसका एक एयर ड्रम जो है वो डैमेज हो गया और उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। पर देन जब हम इस पर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें याद आता है हमारे भी टीचर्स रहे हैं, उन्होंने बहुत शौक़त से हमें पढ़ाया है, या हम आप स्कूल्स में आते हैं हम देखते हैं कितनी मेहनत करते हैं टीचर्स आपके लिए। बट वहीं कहीं ना कहीं कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो इस तरीके की हरकत करते हैं। तो इन सब चीज़ों पे हम बात करना चाहेंगे आपके साथ। लाइक टू हेयर फ्रॉम यू ऑल कि आपके रुझान कहाँ कहाँ हैं और आपके टीचर्स कितने आपकी जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है और आपकी जो पैशन है उनको कितना बिल्ड करने के लिए आपके लिए मेहनत करते हैं। रोशन ख्याल आपके लिए एक प्लेटफॉर्म लेकर आया है, न सिर्फ आज के लिए, आगे आने वाले समय में आप स्पोर्ट्स में आगे जाना चाहते हैं तो हम आपके लिए प्रोग्राम्स इनॉग्रेट करेंगे। आप किसी और फील्ड को जानना चाहते हैं, आपका रुझान ज़्यादा बुक्स पढ़ने में है, हम आपकी लाइब्रेरी को कुछ बुक्स डोनेट करना चाहेंगे। आपके सामने एक बहुत बड़ी मिसाल है, मुस्कान नरगिस हमारे साथ आई हैं आज। ये एक ऑथर है और अभी स्टूडेंट है, पढ़ रही हैं हमारे साथ, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ लास्ट ईयर ही, और इन 2 सालों में इन्होंने अपनी ज़िंदगी को अडॉप्ट कर लिया है। इनकी ज़िंदगी में जो है उन्होंने बिल्कुल उसे वेलकम किया कि हाँ ये मेरी ज़िंदगी में ये चीज़ें हैं या ये मुश्किलात हैं, मुझे इन्हें अडॉप्ट करना है और मुझे इनसे लड़ना है। खुद मुझे हेल्प करने कोई नहीं आएगा, मुझे खुद से आगे बढ़ना है। लास्ट 1 ईयर से इन्होंने 2 बुक्स पब्लिश की हैं अपनी, वो 2 बुक्स शायद आज आपके स्कूल को भी डोनेट करें। मुझे लगता है आगे आने वाले समय में मैं एक बेस्ट ऑथर देखती हूँ इनमें, और आप सब बच्चों में से भी हमें बेस्ट ऑथर्स, बेस्ट डॉक्टर्स, बेस्ट इंजीनियर, बेस्ट सिविल सर्विस
आजकल वो ज़माना नहीं रहा जब हम कहते थे कि लड़की है तो डॉक्टर बनेगी, लड़का है तो इंजीनियर बनेगा। आज हम देखते हैं कि हम जिस दुनिया में रह रहे हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भरा है। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो हमें रिप्लेस कर रही है, हम ह्यूमंस को वो रिप्लेस कर रही है। और आए दिन आप देखते हैं गूगल जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स या फेसबुक जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स जहाँ कई सारे मुलाजिम काम करते थे, आज उनको ड्रॉप किया जा रहा है एक टाइम पे इन माइक्रो सेकेंड्स। ट्विटर के पास बहुत सारे मुलाजिम हुआ करते थे वर्ल्ड वाइड, आज ट्विटर सिर्फ 50 तक सीमित रह गया, सिर्फ 50 एम्प्लॉयज वर्क करते हैं वहाँ पे। आप देखिए कंपटीशन कितना है, तो आप उन 50 में कैसे कंपटीशन में कैसे आएंगे? पूरी दुनिया का कंपटीशन आपके सामने पड़ा हुआ है। और कहते हैं कि जितना आप बड़ा सोचेंगे उतना बड़ा आपके साथ होगा। अगर आप सोचते हैं कि आज पूरे दिन में मैं 3 घंटे स्टडीज करूँगा या करूँगी, चलो आपने एक लिमिट सेट की है कि 3 घंटे पढ़ना है, तो 3 घंटे कम से कम 1 घंटे तो आप पढ़ेंगे। तो जितना लिमिट आप अपना हाई सेट करेंगे उतना आप आगे जाएंगे। और दूसरी चीज़ इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन जो है आप आपस में भी बनाए रखिए। स्टूडेंट्स मैंने ये एक पैटर्न देखा है अपने टाइम में भी कि बहुत ऐसा होता है कि आपके एकेडमिक्स में बहुत अच्छे मार्क्स है और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके बहुत कम मार्क्स होते हैं, तो देयर इज अ डिवीजन विद इन द क्लास। आई हैव सीन दैट। उस डिवीजन को खत्म करना है, क्योंकि मैंने देखा है जिन कभी कभी नॉट ऑलवेज कभी कभी ऐसा होता है जिस बच्चे के हाईएस्ट मार्क्स है वो एवरेज स्टूडेंट शायद कहीं ना कहीं फिर आगे जाके उससे आगे भी निकल सकता है या पीछे भी रह सकता है। डिपेंड्स अपॉन योर हार्ड वर्क। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। जो हार्ड वर्क करता है वो आगे निकलेगा ही निकलेगा, उसको वो आपको आपसे पीछे कहीं नहीं देखेगा, वो जिंदगी में कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाएगा। बट द प्रॉब्लम इज विद आवर माइंडसेट। वी हैव टू डेवलप आवर माइंडसेट इन अ वे दैट द फेलो स्टूडेंट्स आर ह्यूमन बीइंग्स विद अस एंड वो इक्वली उनमें कोई ना कोई हुनर है। जब हमें इस दुनिया की तकलीफ हुई है तो हर किसी को कोई हुनर दिया है, हर इंसान में खामी है, हर एक इंसान में एक हुनर है। तो हमें खामियों पे वर्क करना है और हुनर को बूस्ट करना है, डेवलप करना है और आगे लेकर जाना है। आई एम ग्लैड कि आपकी के जो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने हमें अपने स्कूल में एंट्री दी, उन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम आप बच्चों से इंटरेक्ट कर पाए। आप हायर सेकेंडरी लेवल के बच्चे हैं, आगे जाके आप कॉलेजेस में जाएंगे या अपने लिए एक सिलेक्शन ऑफ करियर करेंगे। एक कोशिश ज़रूर कीजिएगा अपने तरफ से, अपने पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेशन गैप को ख़त्म कीजिएगा, क्योंकि आपकी एज में हमारी भी कम्युनिकेशन गैप रही है अपने पेरेंट्स के साथ, हमने देखा है। और हम आज उस स्टेज में हैं, उस अर्ली अडल्टहुड में हैं जहां हमें सिर्फ अपने पेरेंट्स की ज़रूरत है। हमें कुछ भी होता है हम अपने पेरेंट्स के पास चले जाते हैं, बिकॉज हमने उस कम्युनिकेशन गैप को कहीं ना कहीं फिल किया है और उसे फिल करने में थोड़ा टाइम लगता है। आप में पेशेंस लेवल आगे जाके जो आपको हेल्प करेगा, डेवलप अगर आपने किया तो आपको ये बहुत हेल्प करेगा ज़िंदगी। हमारे चेयरमैन सर जो है वो हमेशा हर एक चीज़ बोलते हैं, एक कॉमन चीज़ हर इवेंट में बोलते हैं। आज मैं वो बोलना चाहूँगी कि मरना बहुत इजी है, इट विल टेक यू 5 minutes टू एंड योर लाइफ। लेकिन अगर हम कहेंगे कोई चीज़ मुश्किल है तो वो है ज़िंदगी को जीना। और जिस इंसान ने पूरे जोश के साथ अपनी ज़िंदगी को जिया और उस पर काम किया पेशेंस के साथ और आगे बढ़ा, उसने सबसे बड़ा काम किया है ज़िंदगी में और उसकी कामयाबी कोई रोक नहीं सकता। और सबसे बड़ी चीज़, आप उस एरा में हैं जहां आपको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, तो कभी ये मत सोचिएगा कि मुझे कम मिला किसी को ज़्यादा मिला, इस कार्ड से मत रहिएगा कि मैं अगर लड़की हूँ तो मुझे कम मिला। यू आर गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटीज, यू कैन सी दैट। तो देयर आर इक्वल बॉयज एंड इक्वल गर्ल्स हियर, आपके पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ है। आपको क्या करना है? मेहनत करनी है, आपको भी मेहनत करनी है। बाकी थोड़ी मस्ती बच्चे करते हैं वो भी चलती रहेगी, बट अपनी लाइफ को बैलेंस करना आज से ही सीखिए, वो आपको लाइफ में आगे बहुत हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच I hope at the end of this session, meaningful and insightful session, I would like to hear from you. एक open interaction session ज़रूर होगा जिसमें हम आप बच्चों से सुनना चाहेंगे, आप कुछ बोलना चाहेंगे, हम ज़रूर
जैसे कि अभी अनिका मैम ने कहा, उन पे मेहनत करें, उनको पहचाने कि अब लाइक आप सबका एक गोल होना चाहिए जिंदगी में कि मुझे सोसाइटी को कुछ देना है। इतना नहीं है कि आप स्कूल आए, आपने पढ़ा, नॉलेज हासिल की एंड दैट्स एनफ। नो, नॉलेज उसको कहते हैं जो चीज़ें आपने स्कूल में सीखी, अपने अंदर बेहतरी लाए, ग्रो करें, उसके बाद अपनी सोसाइटी को सर्व करें। बिकॉज यू नो हम लोग कश्मीर में रहते हैं, हमें कश्मीर को बहुत कुछ देना है। इल्म ही से एक इंसान को सरबुलंदी मिलती है, सुरखरुई मिलती है, अजमत मिलती है, शान मिलती है। Believe in charity, humanity. Same way, if you choose any career for yourself, try to be a good human. Try to have good character. दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकती परवाज़ जरूर रखती है। बट नेक्स्ट जब हमारा इवेंट होगा, दैट विल बी दैट जब हम आपसे इंटरेक्शन करेंगे, हमें ना आपसे आइडियाज चाहिए जो हम सबमिट करें, आपसे पेपर्स चाहिए। आपने जो टैलेंट है ना वो हमें बारामूला से लेके श्रीनगर से लेके दिल्ली जाना चाहिए, इंटरनेशनल लेवल पे खेलना चाहिए। हम डिफरेंट एक्टिविटीज इंशाल्लाह इन फ्यूचर करेंगे एंड दैट्स आवर मेन मोटिव। ऐसा नहीं कि